السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ایک ہفتے کی تاخیر سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جس مسئلے کے اوپر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ایک اہم مسئلہ ہے، اور اس کے لیے میں نے اس مسئلے کے ایک ماہر کو آج دعوت دی ہے، تو انشاءاللہ 2-3 منٹ میں ان کو اسٹیج پر لیتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک چیز پر تبصرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ تبصرہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر اور کچھ بھارتی حلقوں میں بھی ایک چیز کا چرچا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج 26 نومبر کو ایک بریلوی مسلک کے عالم دین مفتی حنیف قریشی صاحب انجینئر صاحب کی اکیڈمی گئے تھے جہلم۔ تو بہت سے لوگوں کو اس کا انتظار تھا کہ بھائی دیکھیں مناظرہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ خیر مناظرہ تو نہیں ہونا تھا، یہ بات تو طے تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرات اتمام حجت کے لیے جہلم پہنچے تھے انجینئر صاحب کے یہاں۔ میں بنیادی طور پر مسلکوں کے درمیان مناظروں کے خلاف ہوں، اور اس تعلق سے میرا موقف آج کا نہیں ہے بلکہ کئی سال پہلے کا یہ موقف ہے، اور اس موقف کی وجہ سے بہت سے وہ حضرات کے جو خود فکری طور سے مجھ سے متفق ہیں لیکن ان کا مجھ سے اس بات پر اختلاف ہوا۔ میں نے باقاعدہ اس تعلق سے ایک لمبی چوڑی تحریر بھی لکھی تھی کہ جس میں نے بہت سے علماء کے حوالوں سے یہ بات درج کی تھی کہ مسلکی مناظریں دراصل حق اور باطل کا فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ ان مناظروں سے امت کی خلیج میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی موقف ہے۔ لیکن یہ جو صورتحال ہے جو انجینئر صاحب سے مناظرے سے ریلیٹڈ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ مختلف اس معنی گر ہے کہ انہوں نے آلریڈی امت میں جتنی خلیج تھی اس کو پاٹنے کے بجائے اس میں اضافہ ہی کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ یہ کہتے کہ میں مناظروں کا قائل نہیں ہوں میں کسی سے مناظرہ نہیں کروں گا، تو ٹھیک ہے، بات مناسب تھی کہ بھئی میں اپنا موقف رکھتا ہوں، آپ کو اچھا لگتا ہے آپ قبول کیجئے، اور آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ مسترد کر دیجئے، میں مناظروں کا قائل نہیں ہوں۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں مناظرے کا قائل ہوں لیکن میں اس وقت کروں گا کہ جب آپ فلاں مسلک کے فلاں عالم سے اور فلاں مسلک کے فلاں عالم سے لکھوا کر لائیں۔ حالانکہ یہ جو مکاتب فکر ہوتے ہیں یا آپ ان کو لوز لینگویج میں مسالک کہہ لیں، یہ مکاتب فکر ہیں، تو ان مکاتب فکر میں کوئی سنگل اتھارٹی نہیں ہوتی کہ بھئی ایک عالم ہے وہ اتھارٹی ہے۔ ہاں کچھ علماء سینئر ہوتے ہیں، کچھ جونیئر ہوتے ہیں، کچھ مڈل ایج ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ اور ہر نظام اور ہر ادارے میں اس طرح کے افراد مل جائیں گے۔ حکومت میں آپ دیکھ لیجئے کہ کچھ افراد سینئر عہدیدار ہوں گے تو کچھ جونیئر ہوں گے۔ آپ فوج میں دیکھ لیجئے کچھ افراد سینئر عہدیدار ہوتے ہیں تو کچھ جونیئر ہوتے ہیں۔ ایسے ہی مکاتب فکر مدارس ہیں کہ ان میں کچھ سینئر عہدوں پر ہیں تو کچھ جونیئر۔ مکاتب فکر میں کوئی عہدہ نہیں ہوتا، ایک آدمی اپنے علم کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اس کی جو بھی تعظیم و توقیر ہوتی ہے وہ اس کے علم کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ اس میں کوئی عہدہ نہیں ہے کہ جی فلاں صاحب جو ہیں فلاں مفتی صاحب وہ فلاں مسلک کے پریزیڈنٹ ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ مطالبہ اپنی جگہ ایک سمجھ لیجئے کہ بچکانہ مطالبہ ہے۔ میں بہت احتیاط سے الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ میرا مقصد ہرگز بھی امت میں تفریق اور انتشار پیدا کرنا نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک بڑا واقعہ ہوا ہے تو اس پر تبصرہ کرنا اور اپنا موقف سامنے رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو جب کوئی عہدہ مسلکوں میں ہوتا ہی نہیں ہے، مکتب فکر میں کوئی ذمہ داریاں تقسیم نہیں ہوتی ہیں، تو یہ مطالبہ کرنا کہ میں فلاں صاحب لکھ کر دے دیں یا ویڈیو پر بیان دے دیں
तो मैं तब मुनाजरा करूंगा, ये गलत बात है। ये मुनाजरे से राह फरार इख्तियार करना है। और जिन दोनों हजरात का इंजीनियर साहब अक्सर नाम लेते हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हफीज़हुल्लाह और इसी तरीके से मुफ्ती मुनीब साहब हफीज़हुल्लाह, ये दोनों हजरात अपने अपने हल्के में बड़ा असर रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दोनों ही मुनाजिर नहीं है। बल्कि मुफ्ती तकी साहब के साथ के बारे में तो मैं ये कह सकता हूं कि न सिर्फ ये कि वो मुनाजिर नहीं है, बल्कि वो मुनाजरे के खिलाफ हैं, यानी खुसूसन जो मसलकी मुनाजरे हैं। और उसकी वजह यह है कि खुद उनके वालिद हजरत मुफ्ती शफी उस्मानी रहीमहुल्लाह और उनके शेख हजरत थानवी रहीमहुल्लाह, ये हजरात मुनाजरों के खिलाफ थे। और यही वजह है कि मुफ्ती तकी साहब भी कभी वही मिजाज है। तो जब एक आदमी मुनाजरों के खिलाफ है, आप उसको ये कहें कि नहीं मैं तो उनसे मुनाजरा करूंगा, वो सामने आकर बैठे, और फिर वो आदमी के ऐसी शख्सियात के अइम्मा हरम जिनके सामने जानवाए तलम्मुस तय करने को, जिनके साथ सामने पढ़ने को अपनी सादत समझते हो, उनको आप ये कहें कि वो मेरे सामने आकर बैठे तो मैं मुनाजरा करूंगा। ये ऐसा ही है जैसे कुरान में है ना, हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात, कि मैं अल्लाह ताला ने एक ताबीर इख्तियार की है। वो ताबीर ये है कि यहां तक कि ऊंट सुई के नाके से गुजर जाए, और ऊंट सुई के नाके से गुजरने का नहीं तो ये बात कभी होगी नहीं। तो ये इस तरह का ही है कि ये मुनाजरा मैं उस वक्त करूंगा कि जब मुफ्ती तकी साहब या मुफ्ती मुनीब साहब जैसी आलमी शोहरत याफ्ता और ऐसी शख्सियात के जिनका इल्मी मकाम बड़ा बुलंद है, और दूसरे जो मकातिब फिक्र हैं वो भी उनकी शख्सियात और उनकी इल्मी कारनामों का एतराफ़ करते हैं, वो मेरे सामने आकर बैठे तो मैं मुनाजरा करूंगा। तो जब एक आदमी मुनाजरे का कायल है तो फिर उसको मुनाजरा करना चाहिए। फिर अगर वो मुनाजरा नहीं कर रहा है और उससे राह फरार इख्तियार कर रहा है, तो फिर यही समझा जाएगा कि कहीं ना कहीं उसके नैरेटिव में कोई झोल है, या तो वो कमजोर है अपने मौकिफ में, या उसका कोई एजेंडा है, अल्लाहु आलम। तो मैं इससे पहले जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब वहां गए थे उस शहर में जहलम में, तो उस वक्त भी सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा हंगामा हुआ था, और उस वक्त ये बहाना बना दिया गया था इंजीनियर साहब और उनके जो भी तलामिजा हैं उनकी तरफ से कि भाई ये तो बगैर बताए आ गए थे। चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेकिन अब तो बाकायदा 1 महीने 1.5 महीने की तैयारी से ऐलान करके बता के टाइम पर पहुंचे। और मैंने वो वीडियोस देखी कि जिसमें बाकायदा इंतजामिया और सिक्योरिटी के अफराद जिन्होंने जहलम एकेडमी के सामने इन हजरात को, जो मुफ्ती हनीफ और उनके साथ पहुंचे थे, उनको रोका हुआ है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। देखें, मैं ये नहीं कहता कि इंजीनियर साहब 100% गलत हैं। कोई भी आदमी 100% गलत नहीं होता जबकि वो मुसलमान हो और ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात कर रहा हो। कुछ बातें उनकी दुरुस्त भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत सी बातें उनकी गलत भी हैं, और उनकी गलत समझ के ऊपर मौक़िफ़ वो मबनी है। तो जब ये बात है, तो फिर एक आदमी अगर बंद कमरे में बैठकर बस अपनी बात करता रहे और चैलेंज भी करता रहे, और फिर जब उसके यहां लोग पहुंचे बात करने के लिए तो वो दरवाजे ना खोले, दरवाजे बंद करके बैठ जाए, कहे कि जी अम्मी इजाजत नहीं देती बात करने की, अम्मी ने मना किया हुआ है। तो ये बहुत ही अजीब व गरीब एक सूरत हाल है। मैं इंजीनियर साहब के और इसी तरीके से उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इस मानगर हमदर्दी रखता हूं कि ये लोग दीन का दर्द रखते हैं। जाहिर है कि दीन का दर्द रखते हैं तो तभी तो इस तरह के उनके यहाँ अफकार पाए जाते हैं कि भाई हम बाबों की नहीं सुनेंगे और औलिया क्या चीज होती है, हम तो सीधा अल्लाह अल्लाह के रसूल को मानते हैं। जाहिर है कि ये नौजवान नाइट क्लब में जाकर डांस भी कर सकते थे, ये नौजवान शराब में भी मुब्तला हो सकते थे, ये नौजवान सट्टेबाजी और इसी तरीके से ड्रग्स वगैरह में भी मुलव्विस हो सकते थे। लेकिन अगर ये बैठकर दीन के नाम पर जो भी उनको दिया जा रहा है उसको सुन रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये सारे नौजवान दीनी मिजाज रखते हैं, और इस काम के लिए उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि उन बुराइयों से बचकर कम से कम दीन के नाम पर आप लोगों ने तवज्जो दी। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में मेरी हमदर्दियां इस मानागर भी उनके साथ हैं
کہ जिस शख्सियत को वो बहुत ही आला इल्मी और समझ लें कि जिसको वो उसवा समझ रहे हैं, नमूना समझ रहे हैं, तो फिर उस उसवा और नमूने को दरअसल उसवा बनकर और रोल मॉडल बनकर दिखाना चाहिए कि मैं अगर कोई बात करता हूं तो दलील की के जोर पर करता हूं और दलील की बुनियाद पर करता हूं। अगर आपके पास वाकई मजबूत दलील है तो एक हनीफ कुरैशी और एक तारिक मसूद नहीं, 1000 तारिक मसूद और 1000 हनीफ कुरैशी आ जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपकी दलील मजबूत होगी और आपको रखने का सलीका भी है। तो भाई हम जिस तरीके से हम खुद देखते हैं कि जब हम स्ट्रीम्स करते हैं, हालांकि हमारा मौजू ये मसलकी इख्तिलाफात नहीं है, हमारा मौजू रद्द इल्हाद और रद्द इर्तिदाद है, और इसके अलावा साथ में हिंदू या कभी क्रिश्चियंस, एग्नोस्टिक्स वगैरह आ जाते हैं। तो हमारा जो लिंक होता है वो पब्लिक होता है, आम होता है, उसमें कोई भी आ सकता है, बड़े से बड़ा आ जाए, छोटे से छोटा आ जाए। और आज से ये सिलसिला नहीं चल रहा है, बल्कि कई साल हो गए हैं, और एक चैनल पर नहीं चल रहा है बल्कि कई चैनलों पर चल रहा है। रोजाना कोई ना कोई स्ट्रीम होती है, तो ये लिंक पब्लिक होता है। और इसके अलावा हमारे जो मुताल्लिकीन अहबाब हैं उनके मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुनाजरे भी होते हैं। अभी मुनाजरा हुआ एवोल्यूशन वर्सेस क्रिएशन पर। तो बाकायदा जो दूसरे फिक्र के और दूसरे मनहज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या दूसरे दीनों के अदियान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आते हैं, गुफ्तगू करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो हमें लाजवाब कर दे। तो ये भी तो हो सकता था ना कि हम लिंक पब्लिक किए बगैर बस अपनी बात कहते और निकल जाते। बहुत से लोग तब भी सुनते, ऐसा ना होता कि वो लोग ना सुनते। आज भी सुन रहे हैं, तब भी सुनते। इससे पहले, आज से 3 साल पहले मैं तफसीर किया करता था, हर हफ्ते तफसीर होती थी, 4 साल पहले की बात है। तो उस वक्त में लिंक पब्लिक नहीं किया करता था। उस वक्त इस तरह का कोई सिस्टम था भी नहीं, ये स्ट्रीम यार्ड वगैरह कम से कम मेरे इल्म में नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी 1500-2000 लोग तफसीर सुना करते थे लाइव, और बाद में तकरीबन 40-50 हजार तक के उसके व्यूज जाते थे फेसबुक पर। तो पॉइंट ये है कि जब आप किसी भी तरह की एकेडमिक गुफ्तगू करते हैं कि जिसमें सामने वाले पर रद है, चाहे वो मुसलमानों में जो फिरके हैं उन पर रद है, और चाहे वो कुफ्फार और जो अदियाने बातिला है उन पर रद है, जब आप रद कर रहे हैं तो सामने वाला ऑब्वियसली रिस्पॉन्ड करेगा। और जब वो रिस्पॉन्ड करेगा तो ये जरूरी है कि आपका रद और आपके जो दलाइल हैं वो उसी वक्त अप्रिशिएट किए जाएंगे, उसी वक्त काबिल कबूल होंगे उम्मत के सामने, कि जब आप सामने वाले के दलाइल सुनकर उसको तोड़ दें। तो मैं मिर्जा साहब से यही कहूंगा कि भाई आप अगर ये चाहते हैं कि लोग इल्मी किताबी बन जाएं, जो ऑलरेडी उम्मत में हर आदमी का दावा है कि भाई वो इल्मी किताबी है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप अपना एक प्लेटफॉर्म जो आपने लॉन्च किया है, जो आगे चलकर फिरका बनना है, ये तय है, ठीक है। और अगर वो, और फिरका बनने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि उसके अपने मदारिस हों और अपने मसाजिद हों। हर जमाने में मदरसे और मदरसों की शक्ल एक नहीं रहती। मस्जिदें तो आज भी खैर उसी शक्ल पर बाकी हैं, मदरसे तो आज ऑनलाइन हो चुके हैं बहुत बड़ी तादाद में। तो मदरसा तो आपने भी खोला हुआ है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो फिरका या आपकी जमात, आप ही अहले सुन्नत वल जमात हों, तो ये जरूरी है कि जब जिन लोगों के ऊपर आप रद्द कर रहे हैं, आप उनके उलमा से अगर आप 10-15 मरतबा नहीं, कम से कम 1-2 मरतबा आप उनसे गुफ्तगू कर लें। मुझे मालूम है कि बहुत सी मरतबा हम भी हर एक से गुफ्तगू नहीं करते, चूंकि हमें कोई भी चैलेंज दे दे उठा के, जी मुझसे गुफ्तगू करो, तो हम उसके यहाँ नहीं पहुंच जाते। हाँ, इल्ला ये कि वो खुद आ जाए तो हम गुफ्तगू करते हैं, उसके यहाँ नहीं पहुंच जाते। आपका ये तरीक़ेकार बिल्कुल ठीक है कि आपको कोई भी चैलेंज करेगा तो आप उसको मुंह नहीं लगाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने आपको चैलेंज किया वो अपने मकातिब फिक्र में वो कोई भी लोग नहीं है, बल्कि बाकायदा उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और उनको जाना जाता है, उनको माना जाता है। वो पाकिस्तान में तो जो टॉक शोज होते हैं उस पर वो आते हैं, तो वो कोई मामूली शख्सियात नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा आपको चैलेंज दे दे और आप अपना टाइम ज़ाय करें। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि आज का जो ये एपिसोड हुआ है पाकिस्तान में जहलम में, कि जिसमें मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को सिक्योरिटी वगैरह की मदद से अंदर जाने नहीं दिया गया, ये इंजीनियर साहब की क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत बड़ा डैमेज है। और ये उनके स्टूडेंट्स को संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए कि आखिर ऐसी शख्सियत के जो हमें दीन के करीब लाने की कोशिश कर रही है, वो उन लोगों के साथ बात क्यों नहीं करती कि जिनके खिलाफ वो अपने कमरे में वो शख्सियत दिन रात बैठकर बात करती है। तो जब वो लाइव आते हैं तो क्यों उनके साथ बात नहीं होती? भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपके पास चूंकि मजबूत दलाइल हैं, आप मुफ्ती हनीफ कुरैशी को इस तरीके से लाचार और कर देते कि वो
कोई भी दलील देने की सलाहियत न रख पाते। आप इस तरीके से अपने मजबूत दलाइल देते, फिर देखते आपकी वाहवाही कितनी होती। और अभी आज शायद पता नहीं कितने, गालिबन 1 मिलियन 1.5 मिलियन कितने भी सब्सक्राइबर होंगे, आपके 5 मिलियन सब्सक्राइबर होते, हम भी आपके सब्सक्राइबर बन जाते, तो आप कम से कम उस चीज को वाज़ेह करते। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है। और जो इंजीनियर साहब हैं, उनके जो तलामिजा हैं, स्टूडेंट्स हैं, दोबारा कहूंगा अप्रिशिएट करता हूं उनके एफर्ट्स को, लेकिन उनको चाहिए कि वो अपने उस्ताद को के ऊपर ये जोर डालें। तो आज का जो पहला जो पॉइंट था वो तो ये था। दूसरा जो पॉइंट है वो भी बड़ा अहम है, और मैंने शुरू में कहा था कि आज मैं एक अहम मौजू के ऊपर शुरू में गुफ्तगू करूंगा लिंक पब्लिक करने से पहले। ये जो पॉइंट है वो ये है कि आज से कोई तकरीबन कई सौ साल पहले, ये कोई आज की बात नहीं है, एक साहब इंडिया में, इंडिया का इलाका है जौनपुर, पैदा हुए, और इनका जो नाम है वो सैयद मोहम्मद जौनपुरी था। और इन्होंने इब्तदाअन तसव्वुफ के रास्ते से, और उसके बाद फिर उन्होंने जब अपना हल्का बना लिया, ये वो जमाना था कि उस दौर में इंडिया पाकिस्तान, ये जो बर्रे सगीर का इलाका, पाकिस्तान तो मौजूद नहीं था, बर्रे सगीर के इलाके में हल्का बनता ही था तसव्वुफ के नाम पर। सूफियाई का हल्के हुआ करते थे, मदारिस नहीं थे और मसाजिद इतनी बड़ी तादाद में नहीं थी, तो खानकाहें थी। तो उन्होंने तसव्वुफ के रास्ते से अपना हल्का बनाया, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता पहुंचे, और यहां तक कि उन्होंने अपने मेहदी होने का दावा कर दिया। तो उनके जो मानने वाले हैं वो महदवी कहलाते हैं, और हैदराबाद में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसके अलावा भी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम है। इनकी तकरीबन तादाद इस वक्त 15 से 20 लाख के करीब है महदवियों की, और ये अच्छे खासे इन्फ्लुएंशियल भी होते हैं। जाहिर है कि जब एक छोटा ग्रुप होता है और वो ग्रुप एक खास मकसद के लिए कई सौ साल से लगा हुआ है, तो उस ग्रुप की जो स्ट्रेंथ है इंटरनल वो बढ़ जाती है, खुसूसन दुनियावी एतबार से। तो ये जो साहब हैं, इनके जो अकायद हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने मेहदी होने का दावा कर दिया, चलो भाई बात खत्म हो गई, कुछ लोगों ने माना कुछ लोगों ने नहीं माना। उन्होंने जो अकायद अपने इख्तियार किए वो खालिसतन कुफरी अकायद हैं, और जिसकी बुनियाद पर उनकी तकफीर की गई। आज जो मेरे साथ एक साहब हैं, उनका नाम है आमिर अकबर साहब। ये खुद साबिक महदवी हैं, और बाकायदा जिस खानदान से आते हैं उसका एक बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। अल्लाह ताला ने इनको तौबा की तौफीक दी। ये मेरे पास यहाँ अमेरिका में ही रहते हैं, मेरे पास आए और इन्होंने अपना तारुफ कराया और इस फिरके के बारे में बताया। इस फिरके के बारे में मुझे यानी ज्यादा बहुत गहराई के साथ इल्म नहीं था, तो उन्होंने जब वो किताबें दिखाई ओरिजिनल, उसके पीडीएफ वगैरह भेजे, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि इनके इस तरह के कुफरी अकायद हैं। तो बहरहाल मैंने इनको आज दावत दी है, हम शुरू के कोई 10-15 मिनट उनसे सुनेंगे, और मैं भी इंशाअल्लाह उनसे कुछ सवाल करूंगा ताकि बात वाज़ेह हो जाए। और उसकी वजह यह है कि हो सकता है कि आप में से बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इस फिरके के ताल्लुक से न सुना हो। बात बिल्कुल ठीक है। ये सवाल हो सकता है कि भाई फिर हम क्यों बता रहे हैं। ये बताना इसलिए जरूरी है चूंकि आपने ना सुना हो, लेकिन महदवियों ने, जो महदवियों के नौजवान हैं, उनको ये जानना जरूरी है कि वो किस रास्ते पर हैं। मैं मसलकों के खिलाफ बात नहीं करता हूं, लेकिन कुफर के खिलाफ बात करना ये तो हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर हम किसी फिरके को काफिर समझते हैं, किसी तरीक़ेकार को कुफर समझते हैं, तो फिर उस कुफर के ऊपर गुफ्तगू होगी। जिस तरीके से हम कादियानियों के खिलाफ भी कभी कभी बात करते हैं, हम ईसाइयों के खिलाफ बात करते हैं, हिंदुइज्म पर बात होती है, बुद्धिज्म पर बात होती है, तो फिर महदवीइज्म पर भी बात होगी। तो मेरे साथ इस वक्त बैक स्टेज पर है, मैं स्टेज पर ले रहा हूं जनाब आमिर अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब जज़ाकल्लाह खैर। आप सब आपके टोटल व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। जज़ाकल्लाह खैर, आप इतना अहम वक्त दिए हमको, माशाअल्लाह। अच्छा आमिर अकबर साहब, थोड़ा सा आप अपना तारुफ कराएं और आपका जो ताल्लुक इस महदवी फिरके से रहा है उसके बारे में थोड़ा सा मुख्तसरन बताइएगा। जी जज़ाकल्लाह खैर।
मेरा नाम आमिर अकबर है। मैं हैदराबाद में रहता था। पिछले 3 साल हुए अमेरिका आकर। मैं खुद सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब की आल में से हूँ, उनकी डिसेंडेंट हूँ। हमारे माँ बाप, दादा नाना वगैरह सब महदवी थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हमको कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारे परदादा सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब के जो दावे थे उसको हमने जांचा, परखा, समझा, उलमा से राब्ता किया, पढ़े, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी आंखें खोली, हमको हिम्मत दी, और उस दावे को हमने रद्द किया, क्योंकि ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। मेहदी को तो भी आना है, सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब का मेहदी होना कोई नो गुंजाइश। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज को हमने रद्द किया। माशाल्लाह। अच्छा, यानी क्या वजह रही, कोई वाकया ऐसा रहा कि जिसने आपकी आंख खोली हो और आपको ये अंदाजा हुआ हो कि भाई अगरचे मैं महदवी फिरके से आता हूं और उनकी आल में से हूं कि जिन्होंने मेहदी होने का दावा किया, लेकिन वो गलत रास्ते पर थे, वो क्या वाकया हुआ? देखिए मुफ्ती साहब और आपके सब व्यूअर्स, हमारी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के साथ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। हम एक मुसलमान है, हमारा ईमान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना है। चाहे वो हमारे बाप हो या परदादा हो या दादा हो, अगर उन्होंने कोई दावा किया है तो उसको हम परखना जरूरी है, और उसको हमने परखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस रिसर्च के बिना पे उसको रद्द किया। ये फिरके से हम अपने आप को दूर इसीलिए करना, इसीलिए हमने जरूरी समझा, क्योंकि इस फिरके के ऐसे अकायद हैं जो बिल्कुल दीन से बाहर कर देने वाले अकायद हैं, और हमको अल्लाह के सामने हाजिर होना है एक दिन। हो सकता वो नेक्स्ट पल हो या कब हो, बस हमको अपनी तैयारी करना है अल्लाह के सामने हाजिर होने की। एक ऐसे फितने के साथ हम अपने आप को कैसे जोड़ सकते जो फितने के अकायद इतने ज्यादा दीन से हटे हुए हैं। तो हमको ये चीज अपने आप को क्लियर करना बहुत जरूरी समझा। ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, ये मीरा सैयद जो टाइटल है वो किसका है? मीरा मीरा साहब, सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब को मीरा साहब भी बोलते हैं। दैट अच्छा, इज वन ऑफ। जी ठीक। तो मैं एक इक्तिबास पढ़कर सुनाना चाहूंगा जो उनकी एक किताब में है। तो वो ये कहते हैं, मीरा सैयद मीर ने फरमाया है कि फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हर नबी के लिए नजीर है। हालांकि इस हदीस का कोई वजूद नहीं है। हर नबी के लिए नजीर है उसकी उम्मत में, यानी उसकी उम्मत में हर नबी का उसकी उम्मत में उस जैसा कोई ना कोई मौजूद होता है, यानी उसका मिसल है। और नबी का मिसल नहीं होता मगर वही शख्स जिसका दर्जा अल्लाह के पास मिसले नबी के दर्जे के हो। बस जब उसको नबी का दर्जा हासिल हुआ तो जरूर है कि वो खलीफा हो अपने जमाने में, और खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी नजीर है आपकी उम्मत में, और वही महदी मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो ये गोया कि इनका जो मर्तबा है मीरा सैयद का, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर है, उनके अपने अपनी उनके मजहबी किताबें उसके एतबार से। अब मैं चाहूंगा आमिर अकबर साहब के थोड़ा सा आप इनके अकायद पर रोशनी डालें। जी, जज़ाकल्लाह खैर। आपको एक चीज, आप सब लोगों को एक चीज मैं बता देना चाहूंगा कि सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब ने खुद कोई किताब नहीं लिखी। महदवियों का जो क्रीड है वो लिखा हुआ नहीं है, इट इज नॉट स्पेल्ड आउट। इनके जो अकायद है मैं आपको बता दूं, आप लोग हैरान हो जाएंगे। ये लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जरूर अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ लफ्जन नाजिल किया। उसका मतलब ये है कि ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा,
نہ صحابہ اکرام نے سمجھا، نہ اہل بیت نے سمجھا، نہ تبع تابعین نے سمجھا. یہ معنی قرآن کا معنی صرف اور صرف سید محمد جونپوری صاحب کو اجازت دی گئی اس کو بیان کرنے کا. یعنی کہ 850 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بالکل اندھیری میں بھٹک رہی تھی وداؤٹ اینی انڈرسٹینڈنگ آف قرآن. تو جب ان کو بیان قرآن کی اجازت ملی تو اس کے بعد انہوں نے قرآن کو اپنی حساب سے جہاں جیسا ٹویک کرنا ہے ٹویک کیا، کئی سارے معنی بدلے. تو یہ ایک ون آف دا بگیسٹ چیز ہے جو مہدوی لوگوں نے کیا ہے. دوسری چیز مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل برابر سید محمد جونپوری صاحب کا مرتبہ ہے، بالکل برابر ان ایوری ایسپیکٹ. اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سید محمد جونپوری آخری کے نبی ہیں. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 اور 3 کو وہ لوگ تحریف کر کے بولتے ہیں کہ آخری کے نبی سید محمد جونپوری. تو یہاں پہ ان کا میں ایک اقتباس کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ لکھا ہے سید محمد جونپوری کے بارے میں کہ حق تعالیٰ کی طرف سے تجلی الوہیت پہ در پہ ایسی ہوئی ہے کہ اگر ان دریاؤں سے ایک قطرہ کسی نبی مرسل یا ولی کامل کو دیا جائے تو تمام عمر اس کو کوئی آگاہی نہ رہے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے الوہیت کی تجلی ایسی کر دی سید محمد جونپوری پر کہ اگر وہ تجلی کسی نبی اور رسول پر بھی ہو، کسی ولی کامل پر بھی ہو، تو اس کو کبھی اس تجلی کی معرفت ہو ہی نہیں سکتی. تو جو علم خدا نے مہدوی کو دیا ہے، سید محمد کو دیا ہے، محمد جونپوری کو، وہ نہ کسی نبی کو دیا نہ کسی رسول کو دیا، تو ان سے بھی افضل ہے. جی اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ جی بالکل. ان کی باتیں جو دل میں آئے انہوں نے بیان کی ہے. اور نہ صرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو سید محمد جونپوری صاحب کے دعوے کو نہ قبول کیا وہ کافر ہے. یعنی کہ حرم مکہ اور مدینہ سارے مسلمان نیرلی 1000 بلین مسلم جو گزرے ہیں اس دن سے آج تک وہ سب کافر ہیں. تو یہ ان کے ایسے بڑے عقائد ہیں جو بالکل میرے خیال سے دین کے باہر کرتے ہیں. اور اسی لیے ہم نے یہ ریئلائز کیا ہے اور اس چیز سے دور ہٹے ہیں. اور اس کے بعد الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم نے ایک تنظیم بھی قائم کی، اس کا نام ٹورڈز اسلام ہے، ویب سائٹ بھی قائم کی، اور اس کے بعد پھر مختلف یوٹیوب ویڈیوز نکالے ہیں ہم نے الحمدللہ، جس میں ہم نے آپ کے چینل کا نام کیا ہے؟ ٹورڈز اسلام. ٹورڈز اسلام. تو میں تمام ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ مہدوی فرقے کے تعلق سے اگر آپ کو دلائل اور ان کے بارے میں معلومات چاہیے تو ٹورڈز اسلام، اور اگر آپ عامر اکبر ٹورڈز اسلام یہ ڈالیں گے تو وہ چینل آ جائے گا انشاءاللہ. جی پلیز کنٹینیو. مفتی صاحب ہم نے یہ ویب سائٹ بھی بنائی ہے جس کا نام بھی ہم لوگوں نے بڑے سوچ سمجھ کر ہمارے مہدوی بھائیوں کو ایک سوال کرتے ہوئے پوچھا، www.ismehdaviyatrrealislam.com. تو ہم ہمارے قوم کے لوگوں کو، ہمارے کزنز کو، ہمارے رشتہ داروں کو ایک پیار سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ کیا واقعی میں مہدویت اسلام کا حصہ ہے؟ آپ ہی جواب دیجئے، آپ ہی دلائل دیکھیے، آپ ہی کتابیں دیکھیے، آپ ہی احادیث دیکھیے. دنیا بھر کے پورے مکمل علماء یعنی کہ پورے آئمہ، چاروں آئمہ سے ہم نے فتوے لائے ہیں، اور ہماری قوم کو مسلسل ہم نے بتایا ہے کہ سید محمد جونپوری صاحب مہدی نہیں ہوتے، مہدی کو تو ابھی آنا ہے. اس سلسلے میں الحمدللہ بہت سارے لوگ، ہزاروں میں لاکھوں میں لوگ مہدویت کو چھوڑ رہے ہیں. ایک مکمل یہ انٹرنل ریولوشن بن چکا ہے کیونکہ ہم خود اس فرقے کے تھے. ہمارے لوگوں سے درد ہے،
دلائل کے ذریعے سے ان کو سمجھانا ہمارا فرض ہے، اور ہم